భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా వారి చరణ కమలకున వినాయక పూర్వక వందనములు. भगवान बाबाच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. आणि आयचे प्रोग्राम आमचो साई युवा अनुभूती हांव बाबाक वेलकम करतात. तशेंच आमचे गोवा राज्याचे प्रमुख श्री महेश भाईक, तशेंच गोवा व्हायस प्रेसिडेंट श्री साईश भाई, तशें आमचे ऑल ऑफिस बेरर्स, सिमिलरली आमगेले ऑल रिस्पेक्टेड एल्डर्स who in fact are the torch bearers of our organization, our all devotees, of all sisters, of all youths, and the little angels of Balvikas, who will be the next future youth of our organization. A journey in everybody's life is always a special one, always special. But in Sai organization, it is more and more special because in this process, we start the journey from I, how. In some time, we realize it is we, Ami. Thereafter, in some time, we realize it is not we, it is He, that is Bhagwan, and He is the one who always there in our journey. We thank Swami, who is always there with us. Similarly, this is the case with our brother Prashant Manjrekar, who today is going to take us towards his journey in Sai mission. So I request our Mahila South Goa District Youth Coordinator, our beloved sister Sonia, to go ahead with the introduction process. Jai Sai Ram. Sai Ram, my beloved pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba, and Sai Ram to our entire Sai family. Today, it's a privilege to have our brother Prashant Prabhakar Manjrekar with us to share his divine experience with our beloved Sai. Engineer by profession, Brother Prashant is an ardent devotee of our beloved Bhagwan. He is humble, kind-hearted, and a very hard-working person. Now, coming to his educational journey, Brother Prashant completed his primary education at Bal Mandir, Karwar. Thereafter, moved to Goa along with his family. He completed his higher secondary schooling at St. Joseph's Institute, Vasco. He further cleared his higher secondary with first class at MES College, Vasco. He cleared his civil engineering degree in 2012 at Goa Engineering College, Farmakudi. Brother Prashant has worked as a junior engineer at Lavande Group's Panjim. He has also worked as a consultant engineer on bridge project at Vasco. With Swami's grace and his hard work, he is presently working as a junior engineer at Goa Electricity Department, Panjim. His hobbies are singing, acting, playing cricket, and other sports activities. Now, let us see his journey towards the spiritual path. Swami's call letter to Prashant, received in year 1998. His journey started as a Bal Vikas student at Kollam. The Bal Vikas class at Kollam was being conducted by our beloved Ujjwala Pavaskar Kaki. Thereafter, Brother Prashant shifted to Vasco with his family. But the attachment with Swami continued as his mother and our beloved Rupa Manjrekar Kaki started conducting Bal Vikas classes. Brother Prashant had an opportunity
to offer his first seva in 2004 at Super Speciality Hospital and was blessed with Swami's divine darshan. He is serving as an assistant Veda coordinator at Vasco Samiti. Brother Prashant encourages our Balvika students to enhance their talent and always ready to support them. He also directs dramas voluntarily during the programs. Brother Prashant follows Sai sayings, duty is God, work is worship, and gives his 100% in whatever work assigned to him. Brother Prashant, along with his entire family, is actively engaged in Swami's activity. Now, I call upon Brother Prashant Prabhakar Manjrekar to take us to his journey towards our beloved Sai. Prashant, Prashant, तुझा आवाज आहे ना? unmute. Your mute आहे suppose. Okay, fine. अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक बाबा के श्री श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सब साई भक्तों को मेरा प्यार भरा साई राम। साई अनुभूति जो आज का टॉपिक है, मेरे हिसाब से साई अनुभूति मतलब बाबा हमारे आसपास जो रहते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है, जो एहसास है, वह साई अनुभूति है। बाबा कहते हैं आपका मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में आना यह आपका निर्णय नहीं है, यह मेरा संकल्प है और आप पर किया गया कृपा है। यह आप कृपा आप कितना अपनी योग्यता अनुसार अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यह मैं आप पर छोड़ देता हूं। एक तेलुगु कविता बाबा ने हमको कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं उसका, कि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तब वो हाथ मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक, मतलब अगर आप छोड़ना चाहो तो भी मैं नहीं छोड़ता। अगर समझो जबरदस्ती से आपने छोड़ना भी चाहा तो भी मैं जबरदस्ती से खींचकर आपको मेरे पास वापस लाता हूं। पर अगर मतलब आपने जब छोड़ा तो अब जो आप गवाएंगे वह आपका लॉस है। आपका जो दुख है, जो तकलीफ है, वो मुझे बताओ। आप मुझसे मांगो, इतना मांगो कि मुझे मजबूर कर दो कि मैं आपको दे दूं। बाबा कहते हैं कि आप जब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, साई ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, तो आपका जो जरूरत है उसको पूरा करना यह मेरा कर्तव्य है। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा भी लाइफ जो है वह इन्हीं सब बाबा के कहे हुए शब्दों पे आधारित है। मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट जो एंट्री इस साई समिति में हुआ, वह 1998 जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था। मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरी मम्मी, हम तब पीडीए कॉलोनी कुरली में रहते थे, और तब मैं और मेरी मम्मी अपना असाइनमेंट कर रहे थे। मैं असाइनमेंट कर रहा था, मम्मी हेल्प कर रही थी। एक स्वैन बनाना था हमको और मैं कुछ ड्राइंग कर रहा था, मम्मी वो स्वैन बना रही थी क्योंकि वो डिफिकल्ट था बहुत। तो हम लोग हॉल में बैठे थे, तभी उस वक्त वहां से जो मेरी फर्स्ट गुरु, उनको मैं प्रणाम करता हूं इस माध्यम से, उज्ज्वला पावस्कर आंटी, वो मेरी फर्स्ट गुरु थी। वो शायद वहां से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि घर में बच्चे हैं, तो उनको लगा कि इनको पूछना है बाल विकास में आने के लिए। तो उन्होंने मेरी मम्मी को आकर पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को मेरे बाल विकास में भेजेंगे? बाबा का हमारा बाल विकास होता है, हम भजन करते हैं, फिर उसमें स्टोरीज सुनाते हैं, अच्छे अच्छे विचार सुनाते हैं, और नए अच्छे अच्छे स्तोत्र भी सुनाते हैं भगवान का। तो क्योंकि मेरी मम्मी एक म्यूजिक लवर थी, तो उनको लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छे स्तोत्र भी सुनने को मिलेंगे, अच्छे विचार भी सुनने को मिलेंगे, बच्चों का मतलब डेवलपमेंट होगा, अच्छा कुछ मतलब अच्छे इंसान बनने के लिए डेवलपमेंट होगा उनका। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इनको बेचते हैं करके। पर क्योंकि वो म्यूजिक लवर थी, उनको भी एक म्यूजिक में इंटरेस्ट था, शादी के बाद वो म्यूजिक से इंटरेस्ट छूट गया था, तो उन्होंने सोचा कि
क्यों ना मैं भी इस बाल विकास में पार्टिसिपेट करती हूँ करके, तो वो भी आने लगी। तो जब बाल विकास में आती थी तो विचार सब सुनते थे, जब स्टोरीज के थ्रू एक थॉट्स जो मिलते थे हमको, वो सब उनको अच्छा लगने लगा। तो जब भी वो बाबा के फोटो की तरफ देखती थी तो उनको ऐसे मतलब क्योंकि बिलीफ नहीं था तभी, वो बिलीव नहीं करती थी कि बाबा है क्या है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे मतलब इतना बिलीफ नहीं था। तो जब भी वो फोटो की तरफ देखती थी, क्योंकि उन दिनों में वो मंगल गौरी का व्रत करती थी, तो बाबा की फोटो की तरफ जब भी देखती थी तभी उनको वो एक देवी का स्वरूप उनमें दिखाई देता था। तो वो बहुत अजीब उनको लगता था कि क्यों मुझे इन देवी का स्वरूप दिखाई देता है। वो एक मन में शंका जागी उनकी। तो उन्होंने, जो हमारी बाल विकास गुरु थी, उनको पूछा कि ऐसा क्यों है कि मुझे उनमें बाबा का स्वरूप दिखाई देता है, मतलब देवी का स्वरूप दिखाई देता है। तब हमारी बाल विकास गुरु ने कहा उनसे कि बाबा जो हमारे हैं वो तो शिव शक्ति के स्वरूप है। शिव शक्ति है तो शिव भी दिखेंगे और शक्ति भी दिखेंगे उसमें। तो जो आपको दिख रहा है वो तो सही है, वो तो देवी माँ है हमारी, साई माँ और देवी माँ हम सब एक ही बोलते हैं। तो उस दिन से ऐसा एक जो माइंड में एक टर्न हो गया मेरी मम्मी का, कि उनको एक इंटरेस्ट सा आने लगा उनमें, क्योंकि विचार भी हमको अच्छे सुनाई देते, मतलब सुनने को मिलता था बाल विकास में। और जो भी हम बाल विकास में सीखते थे हम रेगुलर प्रैक्टिस में हमारा आने लगा। हम मतलब सुबह उठकर माँ बाप का चरण छूकर हम स्कूल जाते थे। फिर स्कूल जाने से पहले हम स्तोत्र जो हमको सुनाए गए हैं, ओमकारम बिंदु संयुक्तम, गणपति प्रार्थना, जो भी है हमको सिखाया गया था, वो सब हम रेगुलरली बोलने लगते थे। तो ऐसे करके हमारा अच्छा से कट रहा था। हमारा एक, जैसे बोल सकते हैं, एक प्रेम गाथा जैसे शुरू हो गया था हमारा बाबा के साथ। तो एक ऐसा सिचुएशन आया लाइफ में कि मेरे पापा का जॉब चेंज हो गया, और उस जॉब चेंज की वजह से हमको किसी कारणवश कारवार जाना पड़ा। तो जब हम कारवार, मतलब हम, मुझे याद है वो टाइम 1999 में एंड था जब हम कारवार चले गए। तभी हमको बहुत दुख लगा कि क्या अभी हो गया, मतलब इतना अच्छा हमारा बाबा के साथ ये चल रहा था, हम भजन जाते थे, अच्छे अच्छे स्तोत्र सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको कि हम इतना इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे और इतना इन्वॉल्व थे हम बाबा के साथ कि वो छोड़ने का मन नहीं था। पर जब हम कारवार चले गए तो एक तरह से मतलब सब कुछ छूट जैसे गया, हाथ जैसे छूट गया। पर मैंने आपको जैसे कहा कि बाबा कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। तो ऐसा हुआ कि जब हम, जैसे मैंने कहा कि हम मई में चले गए थे वहां पे 1999 में। तो पहला जो मम्मी का टास्क जो था, वहां जाने के बाद सेटल तो हम हो गए। तो सबसे पहला टास्क था कि हमको वहां पे एडमिशन देना, क्योंकि लेट में हम पहुंच गए थे वहां पे, तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। तो अभी मम्मी को बहुत टेंशन आ गया कि क्या करना है अभी, इसका बच्चों का क्या करें अभी। पर तभी कहीं से एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बाबा का साथ होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने अगर हमको खींच के लाना ही था तो कहीं से भी वो कुछ भी करके ला सकते हैं, मतलब। तो कहीं से एक इनको, मम्मी को इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बाल मंदिर करके स्कूल है, वहां पे बाबा की गतिविधियां होती है, और वहां के जो प्रिंसिपल है अतर पेकर जी, वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने अभी ठान लिया कि बाबा का जहाँ पे प्रेजेंस है, वहां पे बच्चों का अगर एडमिशन हो जाएगा तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा जैसे हो गया ना। तो उन्होंने सोचा कि मतलब अभी यहीं पे करना है, कुछ भी हो जाए यहीं पे एडमिशन होना है करके। तो उन्होंने डिसाइड किया। तो वो रोज जाती थी वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए, प्रिंसिपल नहीं मिलते थे, निराश होकर वापस आ जाती। तो एक दिन उन्होंने, मतलब एक दिन ऐसे परेशान हो गए, बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए, क्या अभी करने का, बच्चों का फ्यूचर है, अभी एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने एक दिन हमको बोला कि तुम लोग भी साथ में चलो। हम भी गए साथ में, और हम वहां पे पहुंच गए। उस दिन ठान लिया मम्मी ने कि कुछ भी हो जाए आज यहाँ पे एडमिशन लेना है, उससे प्रिंसिपल से मिलना है, कुछ भी हो जाए। तो वो वहां पे हम जाके बैठ गए। तो उस तरह क्लर्क थे, उन्होंने बोला आप बैठो, आएंगे तो मिलवा देंगे करके। तो उस वहां पे, क्योंकि मम्मी जा चुकी, तो मम्मी को पता था कि वहां पे बाबा का फोटो है, सब कुछ है। मुझे नहीं पता था। मैं गया वहां पे, तो मैंने देखा कि बाबा का वहां पे फोटो लगा हुआ है। मैंने ऊपर ऐसे देखा
और मैंने मतलब आश्चर्यचकित होकर बोला, मम्मी मम्मी देखो बाबा का फोटो है वहां पे। तो यह वो क्लर्क ने सुना। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पूछा, आप साईं बाबा को जानते हो क्या? तो मम्मी ने बोला, क्यों नहीं, हम तो ये तो बाल विकास स्टूडेंट है। हम गोवा में जब थे तब बाल विकास में, ये बच्चे बाल विकास में जाते थे, हम भजन में जाते थे, सब कुछ वहां पे हमारा एकदम अच्छा एक्टिविटी चल रहा था। तो ये उन्होंने मन में रख लिया कि ये हेडमास्टर जी को बताना है, क्योंकि हेडमास्टर जी तो थे वो बाबा के भक्तों को बहुत आदर करते थे। तो जैसे ही हेडमास्टर जी आए वो भाग भाग के गए अंदर, और उन्होंने जैसे ही वो आए उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे है, गोवा से बच्चे आए हैं, बालवे का स्टूडेंट है, उनको मतलब एडमिशन के लिए बहुत बार ट्राई किया उन्होंने, मतलब आए नहीं। तो बुला बुला उनको बुला अंदर। तो हम अंदर गए। तो पहला सवाल मुझे लगा कि कोई टेस्ट होने वाला है अभी, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, ये वो होगा एडमिशन के लिए जैसे होता है वैसे। तो पहला सवाल ये, बाल विकास में जाते थे आप? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला स्तोत्र सुनाओ। मैं और मेरा भाई थे। तो उन्होंने एक स्तोत्र सुनाने को बोला। हमने एक के पीछे जितने स्तोत्र थे सब सुना के, एक ओमकार बिंदु से एकदम गणपति का बोलना, ये देवी का बोलना, सब एकदम फटाफट फटाफट बोलना शुरू किया। उन्हें बोला बस 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 रुको, ऐसे बोला, सोचा और बोला कल से आ जाओ स्कूल में। और ऐसे करके हमारा एडमिशन हो गया। तो ऐसे करके बाबा ने हमको फिर से अपने पास बुलाया। तो ये एक जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मतलब क्या है कि वो स्कूल जो था, उस स्कूल का मैं एक खास बात बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ पे गोवा में कैसे स्कूल्स है कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल होता है। वहां पे ऐसे स्कूल नहीं है, वहां पे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का स्कूल होता है। तो उस स्कूल के टाइम में 1 घंटा जो लंच ब्रेक होता है, उसमें एक वहां पे एक प्रथा थी कि जो आपको मतलब अगर खाना है तो खाने से पहले जितने बच्चे आते हैं वहां पे सबको एक हॉल में बिठाया जाता था, और ब्रह्मार्पणम बोलकर ही खाने का शुरुआत होता था। और जब खाना खत्म होता था तब वहां पे एक उन्होंने एक रिक्रिएशन के लिए एक ऐसा एक रखा था कि माइक रखा था, और ऐसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे थे। तो बच्चे जो भी है, मतलब क्योंकि नॉन डिवोटी के भी बच्चे आते थे, डिवोटी के भी बच्चे आते थे। तो कुछ बच्चे जो डिवोटी के बच्चे थे वो भजन गाते थे, कुछ बच्चे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे। तो हमें भी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाना या भजन गाने का मौका वहां पे मिला। तो एक कह सकते हैं कि जैसे मैं अगर बोलूं कि पहले मुझे एक संडे संडे हम भजन जाते थे तो वो छूट गया था, पर यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरा स्कूल भी वही मेरा बाल विकास हो गया। तो एक ऐसा एक ब्लिसफुल जर्नी मेरा एक वहां पे शुरू हो गया। 3 साल हमने वहां पे निकाले। फिर से मेड का कुछ एक प्रॉब्लम हो गया इसका जॉब का, और किसी कारणवश हमको फिर से गोवा आना पड़ा। तो गोवा हम जब आए तब फिर से हमको वही एक चीज लगा कि यार इतना अच्छा एक जर्नी चल रहा था हमारा बाबा के साथ। वो हेडमास्टर भी एक देव पुरुष जैसे थे, बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो भी हमको एक अच्छे अच्छे विचार कहानी सुनाते थे, तो हमारा बाल विकास जैसे होता था, डेली बाल विकास इतना अच्छा हमारा एक ये चल रहा था। तो वो फिर से छूट गया हमारा, जैसे लगने लगा हमको। पर क्या है ना कि बाबा के मन में जब होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो वो जो भी तकलीफें आपको आती है तो वो बाबा वो देख लेते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। और अगर आप छूट भी गए किसी कारणवश, भले वो सिचुएशन की वजह से हो या फिर आपकी किसी मन की इच्छा की वजह से हो, छूट गया तो फिर भी वापस खींचकर आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। तो ऐसा एक ये हुआ कि हम उस साल, जैसे हर साल यहाँ पे वास्को में होता है दामोदर सप्ताह था। तो दामोदर सप्ताह मुझे अभी भी याद है। हम लाइन में गए वहां पे, क्योंकि मंदिर में जाना था, तो लाइन में हम खड़े थे। तो लाइन में जब खड़े थे तो थोड़े थोड़े आगे गए हम, तो दूर से दिखाई दिया ऐसे ही स्कार्फ पहना था, व्हाइट ड्रेस, और बच्चे मतलब लोग वहां पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो हमको लगा कि कुछ तो सेवा हो रहा है वहां पे। जैसे जैसे हम नजदीक गए तो हमको दिखाई दिया कि ये तो हमारे सेवा दल जैसे लग रहे हैं करके। तो और थोड़ा नजदीक गए, मंदिर के जैसे नजदीक पहुंचे वहां पे बाबा का फोटो लगा हुआ था। तो हमको अभी पता चला, जैसे बोल सकते हैं ना, प्यासे को कुआं मिल गया जैसे। इतनी खुशी हमको हुई
कि फिर से हमारा मतलब जो हमने खोया जैसा लगा था हमको, वो हमको वापस बाबा का वो मिल गया हमको। तो वहां पे मम्मी ने तुरंत ढूंढा कि कोई हमको किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि सब बिजी थे वहां पे। तो एक को ऐसे राघवेंद्र गानिका जो हमारे भाई है, राघवेंद्र गानिका, उनको पूछा कि हमको किसी का कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या, कि हमको ज्वाइन होना है साई समिति, हम डिवोटी है बाल विकास मतलब ये कारवार से हम आए थे तो डिवोटी है करके। तो उन्होंने आज के जो हमारे सेवा कोऑर्डिनेटर है ऑल गोवा के सेक्रेटरी थे वास्को समिति के, तो उनका फोन नंबर दिया और दूसरे दिन हम ज्वाइन हुए। और बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक फिर से नया एक जर्नी हमारा शुरू हो गया। जैसे बोल सकते हैं ना कि ट्रेन जो जाता होता है वो एक पटरी से जाता है, पटरी चेंज हो जाता है। तो हमको लगा कि हमारा पटरी चेंज हो गया, पर क्या है स्टेशन हमारा दूसरा था। ये पहला कारवार स्टेशन था, वो हमारा अभी दूसरा स्टेशन हो गया वास्को, पर हमारा मंजिल जो था वो बाबा के पास ही था। तो वो हम उसी डायरेक्शन में वापस पहुंच गए। तो ऐसे करके हम वास्को आए। वास्को में हमारा फिर मम्मी का बाल विकास शुरू हो गया 2004 में। तो 2004 में बाल विकास शुरू होकर फिर हमारा रेगुलरली संडे का बाल विकास, फिर ट्यूसडे को हम नगर संकीर्तन को जाते थे बायना में, फिर थर्सडे को भजन होता था, मंडे का हमारा बायना का भजन होता था, वो हम अटेंड करते थे। ये हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस, तो एक ब्लिसफुल जर्नी हमारा शुरू हो गया था फिर से। तो ऐसे करके एक जर्नी हमारा शुरू हुआ और एक अच्छा सा हमारा चल रहा था। तो जब मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में मम्मी का एक ये आया कि उनको सेवा करने का मौका मिला। तो जब सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने मतलब क्या है, घर में अभी पापा जो थे वो उन दिनों लेट आते थे ऑफिस से, जल्दी जाते थे लेट आते थे। तो मम्मी ने सोचा कि बच्चों को घर पे रखना अच्छा नहीं है, कि कौन देखेगा इनको। तो इन्होंने सोचा कि चलो इनको भी लेके चलते हैं, क्योंकि वो मई का सेवा था, हमको छुट्टियां भी थी, घर में बैठ के क्या करेंगे, मस्ती करेंगे बच्चे घर में जाके। तो हमको उन्होंने सोचा और उन्होंने हमको चलो पुट्टपर्थी चलते हैं करके ऐसे करके ले गए। उस साल किसी कारणवश ऐसा हुआ कि उस साल सेवा के लिए बहुत कम लोग आए, बहुत ज्यादा कम। मतलब वो कोऑर्डिनेटर जो थे मुझे याद नहीं कौन थे, और उनको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हुआ। तो हम पुट्टपर्थी पहुंचते पहुंचते, ये तो बाबा का ही जो संकल्प जैसे बोल सकते हैं कि हम पुट्टपर्थी पहुंचने पहुंचने तक हमारा नाम सेवा दल में इंक्लूड हो गया। अब मैं तो एक्चुअली था 15 इयर्स का 2004 में, एक्चुअली अंडर एज था, पर सेवा दल के लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड हो गया। अब वहां पे पहुंचे तो इससे पहले मैं आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं एक लड़का ऐसा था कि मम्मी के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये किसी शर्म के बिना मैं बोल सकता हूँ कि मम्मी के बिना मैं कुछ नहीं कर, मम्मास बॉय बोलते हैं ना अभी आजकल, तो ऐसे बच्चा के बिना कुछ नहीं कर सकता है। मतलब जहां जाना है अंधेरे से डरना, मम्मी के बिना कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे एक लड़का था, बहुत डरा डरा सा एकदम। और सिरिंज से बहुत डरता था, मतलब इंजेक्शन, खून या डॉक्टर, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत डरने वाला इंसान, ऐसे डरने वाला इंसान मतलब। और उठे और सेवा पड़ गई हमको। अभी सेवा का जब अलॉटमेंट हुआ, मम्मी को पड़ा जनरल हॉस्पिटल में और मुझे और मेरे भाई को मिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। अब थोड़ा सा टेंशन हुआ, पर भाई थे तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो मम्मी से तो दूर रहा नहीं है, 8 दिन रहना है, तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसे सर पे आ गया मेरे। तो अभी क्या करना है, तो फिर भी सोचा कि भाई है ना साथ में तो देख लेंगे, कैसे भी बाबा है, बाबा के इसमें हम गए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है क्या भी, मतलब हम पहले भी जाते थे साइज मतलब पुट्टपर्थी जाते तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता था ऐसे अंदर से, और अभी अंदर से जाने को देखने को मिलता है, पूरा अंदर से देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्साइटमेंट जैसा था, बच्चे थे हम तो एक अलग सा एक्साइटमेंट था। तो जब हम वहां पे अंदर जाके जो अलॉटमेंट हुआ तो मेरे भाई को पड़ा मेन गेट, और मुझे जो सबसे डरने वाला, मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ एक बचपन में मेरे मम्मी ने मुझे किस्सा सुनाया था कि नर्स जब मेरे पास इंजेक्शन लेके आती थी तो मैं इंजेक्शन के वो डब्बे को लात मारता था। इतना मतलब ये मतलब इतना मुझे एक फोबिया जैसे बोल सकते हैं ना वो था कि मतलब इंजेक्शन नहीं चाहिए ऐसे।
और मतलब खून वून नहीं देख सकता था मैं, ऐसे मतलब नहीं होता है देखने को। तो ऐसे एक बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी मिला। आप सोचिए, ऑपरेशन थिएटर में। तो क्या बोल सकते हैं कि मतलब मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में पढ़ा, मुझे कुछ समझा नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में पढ़ा है, अभी करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वहां पे जाके जब पता चला कि ऑपरेशन थिएटर में आपको क्या क्या काम करना है, तो उन्होंने बोला कि सिरिंजेस लेके आना है, वो जल्दी जल्दी भाग कर लेके आना है सिरिंजेस, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो करना है। स्ट्रेचर्स जो लेके आने होते हैं, व्हील चेयर अगर लेके आने होते हैं तो वो करना है, तो सिरिंजेस लेके आना है, ब्लड बॉटल्स लेके हाथ में पकड़ के लेकर आना है। तो मुझे अभी भी याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लड का बॉटल पकड़ा था तो मुझे देखने को नहीं हुआ था, मैंने ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके लेके गया मैं। तो मुझे डांट भी पड़ी पहली बार, क्योंकि मैं स्लो गया था, क्योंकि इतना स्लो क्यों लेके आया करके, क्योंकि ऑपरेशन था वो। तो एक ऐसा मतलब अलग सा एक एक्सपीरियंस वहां पे हुआ। पर क्या है कि बोल सकते हैं ना कि मतलब जो हार्डेस्ट जो लेसन जो है बाबा वो आपको देना चाहेंगे ऐसे। तो वो हार्डेस्ट लेसन जो मुझे मिला वहां पे, कि मैं एक डरा डरा से एक लड़का था, जब मेरे 8 दिन वहां पे कंप्लीट हुए, मैं एक एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हो गया मेरा। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अनुभूतियां जो हमको होती है, वो बाबा हमको एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बाबा हमको एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। फिर वहां से हम पुट्टपर्ती से गोवा आए, और फिर मई का सेवा था, मई का हमारा 6 नवंबर का ये था हमारा, नहीं उससे पहले हमारा ये एक, मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा था। फिर 10th स्टैंडर्ड का एक किस्सा मैं आपको बताऊं तो, मेरा बोर्ड का एग्जाम था। तो बोर्ड के एग्जाम का मेरा मैथ्स का पेपर था। तो मैथ्स के पेपर के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि मैं बीमार पड़ गया, लूज मोशंस और बहुत बुरा हाल, मतलब एकदम पूछ नहीं सकते आप। तो फिर किसी भी तरह से मैंने बाबा का नाम लेकर जप करके, क्योंकि हमको बाबा के बाल विकास में हमको सिखाया था कि सर्वरोग निवारण मंत्र ये सब सिखाया था। तो हम वही मैं चैंट कर करके अपना पढ़ाई भी कर रहा था, विभूति लगा के, पेट को विभूति लगाना, दवाई लेना, ऐसे करके कुछ कोशिश की। इसी तरह से एग्जाम के दिन तक थोड़ा सा ठीक हो गया। पर क्या है कि आपको पता है कि लूज मोशन होने के बाद इंसान का पूरा बॉडी का जो एनर्जी डाउन हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। तो मेरा पूरी तरह से, और क्योंकि मैं एनीमिक भी था, तो पूरी तरह से एकदम डाउन हो गया, और मतलब बहुत बीमार स्थिति में, चल भी नहीं पाता ऐसे पूरा एकदम। मतलब मुझे ऐसे है कि अभी नींद जैसे आ रहा है और एग्जाम को जाना है अभी सुबह सुबह। तो मम्मी ने बोला कि मैं आपको छोड़ देती हूँ, स्कूल तक छोड़ देती हूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी नहीं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जैसा भी था, और मुझे लगता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मम्मी क्यों चाहिए अभी ऐसे ऐसे करके। तो क्योंकि ऐसा भी एक मन में ख्याल आया कि अगर मैं मम्मी के साथ जाऊंगा तो बच्चे मेरे पे हंसेंगे, ये क्या बच्चे बच्चे ये मतलब मम्मी के साथ आता है अभी भी, ये डरपोक डरपोक करके। तो मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी को बोला नहीं नहीं आप नहीं आना करके, मैं ही जाऊंगा। तो मम्मी को, क्योंकि माँ है, उनको पता है कि बेटे पे क्या गुजर रही है, उन्होंने बोला कि आप साई गायत्री बोलो और जाओ करके, सब ठीक होगा। तो ये मन में मैंने मतलब एक ग्रहण कर लिया कि बाबा का नाम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं निकल गया, बस में बैठा, बस से क्योंकि 5 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल। तो पहुंचा स्कूल तक, अब रोड क्रॉस करना है, बाबा का नाम लेते लेते कैसे 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 रोड क्रॉस किया मैंने, ठीक है। और रोड क्रॉस करते ही जैसे ही मैं मतलब अभी स्कूल सामने ही है और मैं एंटर करने वाला हूँ, तभी वहां पे वैसे तो बहुत सारे मतलब व्हीकल्स थे और हॉर्न बज रहे थे, बहुत कुछ एक नॉइज जैसे था। पर उस समय एक ऐसा नॉइज, मैं अभी भी मेरे, अगर मैं उसको याद करूं, मुझे अभी भी याद है वो एक ऐसा हॉर्न मेरे कान के अंदर जैसे बजा, मेरा ब्रेन जैसे सो गया था उस टाइम पे। तो एक ऐसा नॉइज मेरे अंदर बजा कि वो ब्रेन अचानक से खुल गया, और एक एनर्जी मेरे अंदर आई। और मैं अभी ऐसे इंसान जो चक्कर जैसे आ रहा था, उस इंसान को एक दौड़ने की क्षमता जैसे आ गई। और मैं मतलब एक एनर्जी के साथ मतलब उस एग्जाम हॉल में अंदर गया, और मैंने एग्जाम लिखा। पता नहीं मुझे कि मैंने कहाँ से वो एनर्जी आई, शायद बाबा ने वो वही मिरेकल किया था। तो एक एनर्जी आई और वो मैंने एग्जाम लिखा,
और उस एग्जाम में मुझे 90% मार्क्स मिले। तो कहते हैं ना कि बाबा, जब हम बाबा के मिशन में जब हम शामिल होते हैं तो बाबा हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, और हर चीज में मतलब एक जो हाथ होता है वो हमारे पीछे होता है। और हमारे उस टाइम पे हमारे घर में एक फोटो था, बुक साइज का एक फोटो था। उस फोटो में एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा था, बाबा का ही कोट है, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो वो जो कोट है वो उस दिन मेरे लिए मतलब एक गोल्डन वर्ड जैसे बोल सकते हैं ना मेरे लाइफ के लिए, वो एक हो गया। तो वहां मतलब उस एक वो एक पॉइंट था, क्योंकि वो पॉइंट पे अगर मैं, मेरा मैथ्स का पेपर अगर अच्छा नहीं जाता, शायद मैं साइंस स्ट्रीम भी नहीं लेता और मैं आज इंजीनियर नहीं बन पाता। तो एक क्रूशियल मोमेंट पे बाबा ने मुझे एक सेव किया, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये अभी मेरा 10th का एग्जाम हो गया। फिर हमारा आया कि ईश्वरम्बा डे करना है करके। मई में ईश्वरम्बा डे का प्रोग्राम होता था। तो ईश्वरम्बा डे का हमारा मैंने स्क्रिप्ट लिखा और सब कुछ हो गया रेडी। पर 2 तारीख को ऐसा हुआ कि मम्मी को पहले से ही एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा था, कि हेल्थ का कुछ इश्यू चल रहा था। उन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी बाबा का एक एनर्जी जो होता है कि बाबा के काम करना है करके, तो एनर्जी के साथ वो काम कर रही थी। पर वो मन के उनको पता था कि अंदर से कुछ प्रॉब्लम है करके। तो 2 तारीख को उन्होंने डिसाइड किया कि जीएमसी जाकर चेक करते हैं करके। वहां पे जाके जो डॉक्टर ने बोला तो वो भी सरप्राइज हो गई कि उन्होंने कहा कि आपको तो एडमिट होना है करके, अगर आप घर गए तो हम रिस्क नहीं लेंगे बाबा करके। अभी उनको टेंशन आ गया कि अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हमने 1 घंटे का लिया है और बच्चे छोटे छोटे घर पे हैं, क्या करेंगे अभी। तो उन्होंने बोला भाई को कि फोन, किसी के घर में भी फोन भी नहीं था, तो किसी के थ्रू नेबर के घर पे उन्होंने बोला कि बच्चे को थोड़ा बोल दो, और एक इंफॉर्मेशन पास किया कि भाई को अभी जो भी खाना बनाना आता था तो वो खाना बना के मम्मी को लाके देंगे, और मैं ड्रामा का जो भी है वो, या फिर डांस का जो भी है, हमारी एक और बाल विकास स्टूडेंट थी वर्दा करके, उनको मैंने और उन्होंने थोड़ा सा मतलब मैनेज करना है करके, तो मैनेज करना शुरू किया। हमारे जो उस समय के बाल विकास कोऑर्डिनेटर थे के एस नाडगिर जी अंकल हमारे, तो वो हमको डेली देखने के लिए आते थे। और जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ वो, आज भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत लोगों ने सराहा हमको कि बच्चे होकर आपने इतना मतलब बिना आपके गुरु के, वैसे तो हमारे बाबा जो गुरु हैं वो तो हमारे साथ थे ही, पर क्या है कि एक मॉरल सपोर्ट के लिए गुरु होते हैं, तो वो गुरु नहीं था, फिर भी हमने किया। तो उस दिन हमने प्रे भी किया। और मम्मी का मेरा एक एक्सपीरियंस मैं मिरेकल जैसे बोल सकते हैं मम्मी का, कि वो अभी हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने भगवान से प्रे भी किया कि उनको ठीक कर दो करके सेंटर में हमारे। तो उसके बाद उनको एक दिन पहले, अभी ऑपरेशन होने वाला था उनका, एक दिन पहले उनको एक सपना आया, और उस सपने में वो बैठी हुई है स्टेप्स पे, और ऐसे मतलब उठने को नहीं हो रहा है उनको। तो बाबा आए, उनके हाथ पकड़ा ऐसे करके और चलो करके बोला उनको। तो उन्होंने बोला नहीं 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 हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, उठने को नहीं हो रहा है। बाबा ने बोला उठो, मैंने बोला ना उठो, उठो चलो करके बोला। तो वो उठकर चली गई, ऐसा करके उनको सपने में दिखाई दिया। और जब वो सब चीज चल रहा था तभी उनके ऊपर एक पानी का छिड़काव जैसे हुआ। तो पानी का जब छिड़काव हुआ अचानक से उठ गई, और जब वो उठी तब जब बीमार स्थिति में थी तो वो अचानक से उनको लगा कि मैं ठीक हो गई हूं करके, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। अब नेक्स्ट डे ऑपरेशन है, डॉक्टर ने चेक किया तो देखा तो सब कुछ नॉर्मल है, ये तो हॉस्पिटल में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा एक रिपोर्ट आया कि ये हॉस्पिटल में क्यों है करके। उन्हीं उसी दिन उनको डिस्चार्ज भी मिला और वो घर पे भी आ गए। नेक्स्ट डे उनका, मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, तो एक ग्रेटिट्यूड करके उन्होंने वो प्रसाद भी चढ़ाया उनके ऊपर, उनको बाबा को सेंटर में जाके। तो एक ऐसा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये चीज से मुझे क्या सीखने को मिला। पहले तो सेवा में गया तो मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरा बूस्ट हुआ, एक डरा हुआ लड़के से लेकर एक कॉन्फिडेंट लड़के में मैं बदल गया। यहाँ पे मुझे एक लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिला। तो बाबा का जो ये जो अनुभूति, जो मेरा जर्नी था, उसमें धीरे धीरे मुझे बाबा एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे थे। तो मेरा 12th, एक 10th हुआ, 12th हुआ,
फिर मेरा इंजीनियरिंग की बारी आई। अब ये सबसे बड़ा मतलब लाइफ डिफाइनिंग जो मोमेंट जो बोल सकते हैं ना, वैसे हुआ मेरा। तो इंजीनियरिंग में भी जाना है तो मुझे एक ऐसा ये आया, काउंसलिंग होता तभी जी सेट के बाद काउंसलिंग होता था। काउंसलिंग में मुझे एक दो ऑप्शन आया कि इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग लेना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना। तो सिविल इंजीनियरिंग तो मेरा फेवरेट था, वैसे भी मुझे जाना था सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरा मन में तो सिविल इंजीनियरिंग था, पर क्या है कि हम अभी पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं क्या करना है, तो मम्मी भी पूछने लगी लोगों को कि क्या करना है। बहुत से लोगों ने बोला सिविल इंजीनियरिंग में उतना अभी स्कोप नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो करके, क्योंकि वो सिविल नहीं चल रहा है करके, अभी मार्केट मार्केट बहुत डाउन है, ये नहीं चलेगा करके। मैं टेंशन में अभी क्या करना है, क्योंकि ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है लाइफ का। और मम्मी भी टेंशन में, पापा भी टेंशन में, क्या करना है अभी। तब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बाबा के पास ही जाते हैं। तो हमने मम्मी ने डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, हम दो चिट्स करते हैं। दो चिट्स में एक सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दो चिट्स, और वो बाबा के पास रखते हैं। 5 बार निकालेंगे, अगर उसमें से 3 बार अगर सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आए, ये बाबा का डिसीजन है, ये समझ के हम आंख बंद करके इसको फॉलो करेंगे। ये हमने डिसाइड किया फाइनली। तो मैं गया बाबा से प्रे किया, बाबा देखो जो भी मेरा फ्यूचर बनने वाला है ये आपके मैं चरणों में रखता हूँ, और जो भी आपका आपके हिसाब से सही है मेरे लिए, ये मुझे आप दे दो करके मैंने मांगा बाबा से। तो बाबा ने, मैंने ऐसे करके चिट्स रखा और 5 बार मैंने ऐसे आंख बंद करके निकाला। तो 4 बार सिविल इंजीनियरिंग आया और 1 बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया। तो मम्मी ने बोला, मम्मी खुश हो गई एकदम, मतलब क्योंकि मुझे भी चाहिए था वो। तो अभी बाबा ने बोला तो फाइनल हो गया 100%। तो हमने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग करते करके, पर जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आया था उसका हमने सोचा नहीं है, क्योंकि 4 बार आया ना बाबा का ये डिसीजन जो है, 4 बार सिविल इंजीनियरिंग का आया तो फाइनल है सिविल इंजीनियर, अब तो सोचना भी नहीं है करके। पर जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आया था, आज मुझे समझ में आ रहा है कि उसका एक का मीनिंग क्या था। वो जो हुआ था 2008 में, आज जब मैं लगा जॉब पे वो 2015, 7 इयर्स। तो मेरा गवर्नमेंट जॉब जो लगा, मुझे लगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानना होता है, उनके बारे में भी समझना होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो एक आया था वो चिट, बाबा ने उस टाइम मुझे बताया था कि आपको वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पार्ट सीखना है। तो वो उस टाइम पे बाबा ने हमको बताया था कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखना है, और वो आज मेरे लिए वो सच हो गया है। तो ऐसे करके बाबा मेरे लिए एक गाइड जैसे बोल सकते हैं, लाइफ का गाइड करके उन्होंने मुझे हमेशा से गाइड किया है किस डायरेक्शन में जाना है। किस अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सीधे बाबा के बताऊं, और मैं बाबा को बोलता हूँ कि आप डिसाइड करो कि क्या करना है करके। क्योंकि कुछ चीजें होती है हमारी मन के इसमें, इंसान की क्षमता में नहीं होती है, तो वो हम बाबा के ऊपर अगर छोड़ दे, और मन बाबा के ऊपर पूरा अगर अगर हम विश्वास रख के अगर हम उसको फॉलो करें ना, तो सक्सेस मिलना ही है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ऐसे करके मेरा इंजीनियरिंग लाइफ शुरू हुआ। तो हॉस्टल में मैं रहता था, तो हॉस्टल में ऐसे बोल सकते हैं ना कि हम, क्योंकि मैं बाबा का इसमें हम बाल विकास में हम सीखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करना, बुरा क्या है, सच क्या है, मतलब गलत क्या है उसमें, और अच्छा क्या है उसमें डिस्क्रिमिनेट करना है, और हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमको सिखाया जाता था, कहानियों के द्वारा हमको सिखाया जाता था। तो वो, और सीलिंग ऑन डिजायर्स जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हम जब मैं जब हॉस्टल में था, तब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अच्छे थे एक्चुअली, वो बिगड़ गए। और मैं वो पार्टी वगैरह करते थे, वो सब मुझे बोलते थे कि क्या तू ऐसे अनसोशल जैसे है, मतलब कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने इसमें रहता है, अपना पढ़ाई और ये सब लेके बैठता है, और भजन वगैरह अटेंड, क्या है ये तेरा, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो लगता था, पर क्या है कि हमको जो बाबा ने सिखाया है कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपने इच्छाओं पे कैसे काबू करना है, वो वहां पे बाल विकास की वजह से मुझे मिला। और उस हॉस्टल के लाइफ में मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फिर एक और का किस्सा मेरा हॉस्टल के लाइफ का मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक एग्जाम था, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम था। तो
उस एग्जाम के टाइम पे ऐसे एक बच्चे नाइट स्टडी करते थे वहां पे। वो एक बहुत बड़ा एक ये था कि सब बच्चे रात भर पढ़ाई करके दिन को एग्जाम करते आंसर करते थे। तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले एग्जाम मतलब नाइट स्टडी करना है करके एक दिन पहले करते हैं, मतलब आज एग्जाम है तो उससे पहले एक और रात को हम नाइट स्टडी करते हैं करके। मैंने भी किया, ट्राई करते हैं, देखना है, मतलब क्यूरियोसिटी थी कि मतलब देखते हैं करके। तो नाइट स्टडी मैंने किया, पर वो मुझे शायद से मेरे हेल्थ को अच्छा नहीं गया और मुझे लूज मोशंस और बुखार वगैरह आने लगा। तो अभी मैं हॉस्टल में था, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो किसी तरह से मैंने वो एग्जाम लिखा। अब एग्जाम लिखने के टाइम पे मेरा एक मम्मी ने मुझे कहा था, क्योंकि वो मेरी बाल विकास गुरु थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जो भी आप कार्य करते हो वो बाबा को अर्पण करके करो। तो एग्जाम का भी शुरुआत में ऐसे करता था कि बाबा को प्रे करता था और ऐसे करके नमन करता था साई गायत्री बोलकर, और फिर एग्जाम का लिखना शुरू करता था। तो उस दिन में मैंने ऐसे किया, ये एक रूटीन जैसा हो गया था, ऐसे नहीं कि हम स्पेशल करते, रूटीन हो गया था हमारा। तो वो रूटीन मैंने वो वैसे ही किया और वो एग्जाम मेरा मतलब मुझे ही नहीं समझ, अभी भी याद है कि मुझे क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है उसमें। तो वो एग्जाम में 2-3 बार उठकर मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ा, मेरी तबीयत खराब थी, उसी पेट दर्द वगैरह हो रहा है, और उसी में मैंने एग्जाम कैसे भी करके लिखा। और मैं लिखकर फिर घर आ गया, क्योंकि बीमार था तो घर आ गया, मैं हॉस्टल में नहीं रहा। और तो घर आ गया और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गया मेरा एक सब्जेक्ट गया करके, ये कुछ नहीं होने वाला इसमें, मतलब गया करके। तो मम्मी ने बोला तुम बाबा को ये करके लिखा है ना कुछ तो होगा, टेंशन मत लो करके, ऐसा मतलब हो जाएगा, पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। मम्मी का एक विश्वास था कि बाबा को अर्पण किया हुआ चीज जो है वो होगा ही करके। तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा, पर क्या है कि एक खुद को पता था ना कि क्या लिखा है करके, मुझे तो याद भी नहीं था कि उस टाइम पे कि क्या लिखा है करके। तो मैं टेंशन में, अभी 1 महीने बाद रिजल्ट है, तो रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे रात को बहुत टेंशन, इतना टेंशन में मैं था कि क्या बोलूं मैं। तो वो टेंशन में मैं नींद नहीं लगा मुझे, जैसे तैसे मुझे शायद 3-4 बजे नींद लगी उस टाइम पे। और बाबा सपने में आए, और वो एक जैसे होता है ना कि एक फ्लैश जैसा एक सपना आता है, वो एक 2-3 सेकंड का सपना होता है। तो वो फ्लैश जैसा एक सपना आया, बाबा ने उसमें ऐसे करके दिखाया, ऐसे 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 करके दिखाया। मैं देखा, अचानक से जाग गया, मैं उठ गया। मैं अब क्या है कि सपना जब देखते हैं हम तो सपने के बारे में सोचते हैं जब उठते हैं तभी। तो सोचने लगा कि ये क्या, अभी इसका मीनिंग क्या है। मैं मतलब एक उत्सुकता जैसी हो गई कि मतलब ये क्या है अभी। मैंने मम्मी को जाके उठाया, वो 5 बजे था, फिर भी मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी मम्मी उठो उठो करके। और मैंने बोला मम्मी को, ये बाबा ऐसे ऐसे करके दिखाया मुझे सपने में, ऐसे ऐसे करके दिखाया, ये क्या है करके। बोला ऐसे ऐसे करके दिखाया ना, हो गया पास करके, टेंशन मत लो, सो जाओ करके मुझे बोला और मुझे सुला दिया। तो मैं जाके सो गया। तो नेक्स्ट डे अभी फिर भी एक क्या है, मन में एक टेंशन जैसा था कि पता नहीं मुझे लिखा है मैंने, पता नहीं क्या है करके। तो जैसे मैं कॉलेज पहुंचा, देखा तो उसमें बहुत अच्छा मार्क्स, इतना अच्छा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मतलब इतना अच्छा मार्क्स मिला। तो तब एक बोल सकते हैं ना कि मतलब बाबा हर चीज में आपको, मतलब अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो आपको बाबा से बोलना है। उस टाइम पे ना एक दिन पहले मैंने बहुत बाबा से बात की थी कि मतलब बाबा देखो, मतलब ये मेरा एग्जाम है, कैसे भी करके पास तो कर दो, कम से कम कुछ भी करके पास कर दो, मतलब ऐसे ही करके। तो मैंने बहुत मांगा भगवान से, तो उन्होंने दे दिया। तो एक और चीज उन्होंने किया था, ऐसे ऐसे करके किया था ना वो। तो उस दिन मम्मी ने वो थोड़ा सा एनालाइज किया कि ये क्यों किया था। तो शायद मुझे लगता है कि वो बाबा ने ऐसे इसीलिए किया था कि आपने नाइट स्टडी किया था ना, और आगे से नहीं करना है करके। तो वो बाबा ने उस दिन मुझे बताया, तो उस दिन से वो नाइट स्टडी मैंने बंद कर दिया। तो नाइट स्टडी बंद किया तो उसके बाद वो प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं हुआ। तो बाबा हमको हमेशा ना सबक भी सिखाते हैं, और जैसे बोल सकते हैं कि जो भी हमको सबक सिखाते हैं वो अच्छे के लिए सिखाते हैं। तो ऐसे करके हमारा ये हुआ। फिर मैं इंजीनियर बना, पास आउट हुआ। फिर मैं मिलरॉक, मतलब बहुत सारे इसमें काम किया। एक मिलरॉक करके एक मैंने इसमें कंपनी, मिलरॉक गुड अर्थ एंड प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट, वो पणजी में बेस्ड है। और मेरा साइट जो था वो कोरलिम बैंगनी, जो कदम्बा प्लेटो, जो वहां पे मिलरॉक फर्न्स करके अभी जो ये है, कदम्बा मिलरॉक, इसका कदम्बा फर्न्स शायद से उसका नाम।
होटल है वहां पे, तो वहां पे जो सामने जो बिल्डिंग है वहां पे मुझे एज अ जूनियर इंजीनियर मुझे जॉब मिला। अब वो आपको पता है कि वो पहले जमाने में वहां पे कैसा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं। और मैं रहता हूँ वास्को बायना में। पहले मुझे बायना का बस पकड़ के जाना है, फिर वास्को से पणजी जाना है, पणजी से मुझे बाद में कोरलीम जाना है, कोरलीम से मुझे वहां जाना है। इतना दूर जाना था कि 2.5 घंटे लगते थे। और फिर वहां पे जाकर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे था कि उनको लगता था कि मेरा वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए था करके, ऐसे मतलब उनका एक ख्याल था कि वो ऐसे थोड़ा सा घृणा से देखते थे। तो वो थोड़ा सा वहां पे तकलीफ हुई मुझे थोड़ी सी। और ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया वहां पे। और तब मैं बार बार मम्मी को फोन करने लगा कि मम्मी मम्मी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है यहाँ पे, कितना ये करते हैं, तकलीफ करते हैं तो मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, मन में बाबा का ध्यान करो। क्योंकि हमारा वहां पे उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सा ये था, पापा रिटायर होने वाले थे। तो मेरा अगर जॉब छोड़ दिया, मैं अगर जॉब छोड़ दूं तो बहुत तकलीफ होता था। तो मम्मी ने बोला आप ठंडे दिमाग से रहो, बाबा का ध्यान करो, कुछ नहीं होगा, बाबा देख लेंगे, ऐसा बोला। मैंने सोचा कि बाबा अब तक तो बाबा ने हमको गाइड करते हुए आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्योंकि उन्होंने उनके गाइडेंस की वजह से मैं इतना काबिल बना था, तो मैंने बाबा के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया और मैं वहां पे रहने लगा। मतलब मैंने काम किया वहां पे 1.5 साल, मैंने 1.5-2 साल काम किया। उसके बाद मुझे ये गवर्नमेंट जॉब लगा। पर मैं आज जब मैं इस सिचुएशन से जब पीछे देखता हूँ उस जॉब की तरफ, तो मुझे वहां पे जो एक्सपीरियंस मिला है, जो मैंने काम किया वहां पे, उस काम की वजह से जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, वो मुझे गोल्डन एक्सपीरियंस जैसे मैं बोल सकता हूँ। और ऐसे जब कोई एक इंसान अगर बीमार हो गया ना, तो वैद्य के पास लेके जाते हैं, तो वैद्य उसको कड़वा दवाई देता है। तो कड़वा दवाई का जो पहले तो खाते वक्त तो बहुत कड़वा लगता है, वो खाते वक्त भी इंसान कैसे तो करके खाता है इंसान। पर उसका उस दवाई का जब मीठा असर जब उस शरीर पे होता है, तब वो शरीर खिल जाता है, तब उसका इफेक्ट दिखता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि पहले पहले तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत खराब लगा कि वहां पे मुझे नहीं रहना है, वो कड़वा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पर अभी मैं जब देखता हूँ उस इस तरफ, मतलब उस एक्सपीरियंस की तरफ, वो जो मेरा दौर था उस तरफ मैं अगर देखता हूं तो वो मुझे मीठा लगता है। तो ऐसे करके बाबा ने मुझे गाइड किया, एक तरफ से बोल सकता हूं कि मुझे ट्रांसफॉर्म किया एक अच्छे इंसान बनने में। तो ऐसा हुआ। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सिस्टर सोनिया ने एक इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं ड्रामा वगैरह डायरेक्ट करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं ड्रामा डायरेक्ट करता हूँ। मेरी माँ स्क्रिप्ट लिखती है, पर जब वो स्क्रिप्ट लिखती है ना, उनको स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं होता है। मैं लिटरली बोलता हूँ, या अभी साई समिति के भी हमारे वास्को के लोगों को भी पता नहीं होगा ये, कि उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या लिखना है करके। पर जब वो लिखना मतलब क्या, हमारा एक रूटीन है, जब भी हम मतलब कुछ करने जाते हैं तो बाबा के पास चेयर के पास रखना है, उसके बाद एक दिन रख के फिर निकाल के फिर वो लिखने लगती है। और एक बार वो बैठती है तो वो ध्यान में जैसे बैठते हैं ना, वैसे वो फटाफट लिखते जाती है। और अभी भी वो बोलती है कि 2 साल पहले की अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़कर देखूं तो मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा है करके। तो बाबा का संकल्प है वो, जो वो हमसे ये करवाते हैं। तो ये मेरे साथ भी है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं होता है। एक हमने 45 मिनट्स का ड्रामा भी किया था महा के ऊपर। इतना बड़ा 45 मिनट्स का ड्रामा, उसको कैसे मतलब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उस प्लान को। 45 मिनट्स का तो राइटअप रेडी हुआ था, मम्मी ने अपना काम कर दिया था, बाबा ने मतलब उनके माइंड में जाके वो सब कुछ रेडी किया था। पर मेरा अभी काम था कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूं। तो मेरे माइंड में कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। मैं हमेशा बाबा को बोलता था कि बाबा आप देख लो, हो जाएगा करके। मैं ऐसे करके शुरू करता था, बाबा का नाम लेके शुरू करना है। और वो इतना अच्छा ड्रामा हमने किया। और हर साल मैं बोल सकता हूँ 2004 से लेकर जो आज तक हम करते हैं, हर जो साल जो है बाबा को डेडिकेट करके करते हैं। और मैं ये डायरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, बाबा डायरेक्टर है हमारे। तो वो जो डायरेक्टर है उसके हम सिर्फ पपेट्स हैं। तो वो हम पपेट बनकर हमको जो मौका मिलता है, मैं एक बोल सकता हूँ कि ब्लेस्ड हूँ इस चीज से कि मतलब ये ड्रामा वगैरह हम करते हैं बाबा, मतलब एक सेवा की तरह ही है ना ये। तो
हम जब करते हैं तो मुझे एक ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं बाबा का एक पपेट बनकर ये बाबा का एक सेवा मतलब एक मिशन में एक शामिल हो रहा हूँ। तो ऐसा एक ये है। तो मैं लास्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब साई परिवार में आते हैं तो हमको सबको मिलजुल कर काम करना है। तो ये अभी इन दिनों अभी ये कोरोना का ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है, तो बहुत नेगेटिव मतलब ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सब जगह, बहुत नेगेटिव तरह का एक एनवायरनमेंट है। पर अभी ये जो हम कर रहे हैं, ऑनलाइन भजन करते हैं, ऑनलाइन सत्संग करते हैं, बाल विकास करते हैं ऑनलाइन, तो ये जो बाल विकास करते हैं तो इससे पहले क्या होता था कि हम किसी एक जगह मिलते थे, एक जगह हमारा सत्संग होता था या एक जगह हमारा भजन होता था और सब अपने घर जाते थे। अब ऐसा हो रहा है कि हर एक घर में भजन हो रहा है, तो हर एक का घर एक मंदिर बन रहा है आजकल। तो ये एक अलग तरीके का हमको एक बाबा ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इसको हमको ग्रैब करके आगे चलना है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं हमारे जो साई यूथ्स है, जो ऑल गोवा साई यूथ्स है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने बाल विकास से अभी भी जुड़े रहे। भले आप यूथ है, बाल विकास में सिर्फ बच्चे जाते हैं ऐसा नहीं है, यूथ भी जा सकते हैं। हमारे भी यहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं कि शादी भी हो गई उनकी, फिर भी वो हमारे बाल विकास में आकर बैठते हैं, भजन सुनते हैं, नए नए विचार जो भी नए नए अगर कुछ विचार, क्योंकि ये मतलब लर्निंग ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। बाल विकास खत्म हो गया इसका मतलब लर्निंग का प्रोसेस नहीं खत्म हुआ है, तो लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। तो ये हमारे साई लिटरेचर का जो लर्निंग है वो अगर हम इस बाल विकास के थ्रू अगर जारी रखें तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे अभी क्या है कि सबको मैं एक छोटा सेवक हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो तो सबके साथ हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम अगर इस चीज को समझे कि हमको बाबा ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, तो अगर हम इस चीज को समझे तो मुझे लगता है कि हर एक का जो जीवन है वो बाबा का एक मिशन होगा। और उस मिशन में हम सब अगर शामिल हुए तो आप सोचिए कितना एक मतलब एक जर्नी में सभी लोग एक बाबा के एक प्रेम गाथा में हम सबका एक प्रेम गाथा जैसे हो गया, उस इसमें सबका एक इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो कितना अच्छा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि सबको अपने साथ जो एक्सपीरियंस हुए उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उस वो जो बाबा का जो प्यार है वो हमको जो मिलता है उसको समझो, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं एक छोटा सा सेवक ही हूँ बाबा का। हमारे जो हम बाबा अभी ये भी जो साई अनुभूति का जो आज का मेरा टॉक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बाबा ही बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा जो लाइफ है वो बाबा आपको बता रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि सबको अपने जो साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको मतलब महसूस करो, एहसान मतलब एहसास लेना चाहिए उसका, और उसको समझ, क्योंकि ये बाबा का प्यार है हमारे लिए। लास्टली मैं मेरे जो सारे जो जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मेरे जो सबको जो मेरे बाल विकास गुरु हैं, जो पावस्कर आंटी जो है, मेरी मेरे माता पिता, जो मेरे दोस्त हैं जो भजन में आते थे, जो भी हमारे जो सीनियर डिवोटीज है, सबको मैं साईराम कहकर ये जो आज का अनुभूति का जो टॉक है मैं खत्म करता हूँ। साईराम। Om Shri Sai Ram. My gratitude to our beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba, for giving us this opportunity. I thank Brother Prashant for sharing his wonderful experience with Swami and for giving us your valuable advice. सच है, आपने कहा, हमें पूरे विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ इकट्ठे होकर काम करना है। कितनी भी कठिनाई आए, पर भगवान को याद करने से काम आसान और ठीक हो जाता है। भगवान से बड़ा आशद आपद बांधव नहीं, वे सच सुलभ प्रसन्न है। थोड़ी सी भक्ति से ही वो खुश हो जाते हैं। हम सब ने देखा कैसे ब्रदर प्रशांत ने अपने जीवन के सदक्ष किया और कैसे ऊपर उठे।
मैं उनके माताजी को साईराम और धन्यवाद कहती हूँ, जो कि हमारे गुरु हैं। उन्होंने गुरु का और माँ का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ हमें भी अच्छे संस्कार दिए हैं। साईराम मिस और उनके पिताजी को भी हमारा धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको अनुभूति का सुगंध पहुंचा रहेगा। मैं स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, सब समिति कन्वेनर और सब ऑफिस बैरर को धन्यवाद और साईराम कहती हूँ। बट नॉट द लीस्ट, आज यहाँ 1 घंटे से ऑनलाइन प्रोग्राम में बैठकर सुनने वाले सब युवाओं को और डिवोटीज को हृदय से साईराम कहती हूँ। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 21 अक्टूबर। स्पीकर होगा ब्रदर प्रतीश वेर्निकर फ्रॉम पेंजिम समिति। नाउ आई विल एंड द सेशन विथ शांति मंत्र। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की। जय जय। जय